Hey guys, welcome back to my video. In today's video, we are going to do SSC chapter number 4 of History, Tribal Decos and the Vision of the Golden Age. This chapter is interesting. We are having a hero. This is like a movie. We are having a hero in this chapter the name of the hero I'm going to tell you later. But before starting the video, you should subscribe to my channel and click on the bell icon to receive the notification when I upload a new video. And you have to like this video and share this video with your friends who are in your class and they are also studying the same content. So do share with your friends and like the video. So without wasting time, let's get started with tribal decus and the vision of golden age. So this is an interesting chapter with a hero in it. First of all, we will learn about what is a tribal. A tribe is a group of people who live in the forest and have a common language and culture. The tribal people are closely related to the forest for their existence and subsistence. In this whole paragraph, we get to know that what are tribes, what the tribe people, where the tribe people live, what is their language, with which thing they are closely related to. The most common thing I want to circle is that it's a group of people who live in the forest. So forest is what something have common and they are having a common language and culture. Likewise, in our India, we all are having our common culture and we all follow that cultures as well. Language is also same. But in tribal people, they live in the forest. They live in the forest together, and their language and culture is also same, and they are closely related to forest. This forest for their existence and subsistence. So what are the features of tribal people? Yeah, features. The features of the tribal people are that each tribe has a group of their own distinct rituals and customs. Each tribal group has own distinct rituals and customs. They did not follow any caste rules led by Brahmins. Means I'm going to explain in Hindi this point because this point is very important in this chapter that वो कभी भी कोई भी रूल, किसी भी चीज़ का कोई भी रूल ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए गए रूल को फॉलो नहीं करते थे और हर एक ट्राइबल ग्रुप के पास उनके डिस्टिंक्ट रिचुअल्स और कस्टम्स होते थे और इन सोसाइटीज़ के अंदर उनके पास शार्प सोशल एंड इकोनॉमिक डिविजन्स भी नहीं थी. These societies did not have sharp social and economic divisions. तो ये थे इनके फीचर्स. अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे ये एक ट्राइब है, खासी ट्राइब, गारो ट्राइब, मुंडा ट्राइब. These all are the pictures of tribes. These pictures clearly can be seen. Next slide. What is tribal people engaged in? They practice zoom cultivation, which is also known as shifting cultivation. This question is main. This question will be asked in your exam if you are giving MCQs questions, if you are giving one word questions. This question is must. That what was their occupation, what they were practicing. They were practicing zoom cultivation, which was also known as shifting cultivation. And do you know, many tribes like Khons of Orisha lived by hunting and gathering. This was the main thing that in Orisha, there was a tribe in Orisha named Khons. They lived by hunting and gathering. Means जैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी मतलब कि हम तो अपने रॉ मटेरियल से फूड बना के उन्हें कुक कर खाते हैं, लेकिन जो ट्राइबल पीपल थे वो पहले हंट करते थे, फिर उनका फूड बनता था और वो हंटर गैदरर्स थे.
और कुछ लेबरल्स तो मतलब और जॉब्स करते थे, जैसे फार्म्स में कंस्ट्रक्शन करते थे, और कुछ टाउन्स में जाके कुलीग्स होते हैं, मीन्स कुली बनते थे, तो वो वर्क करते थे लेबरर्स के तौर पे. ट्राइबल पीपल मोस्टली वर्क एज लेबरर्स इन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स. तो ज़ूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में अब ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है कि ज़ूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या था. इस दौरान मीन्स ज़ूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर की जो प्रैक्टिस थी वो थी कल्टीवेशन फार्मर्स क्लियर्स द फॉरेस्ट एरिया. या दैट्स द मेन क्वेश्चन. द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन इन एग्जाम एज वेल, दैट ज़ूम कल्टीवेशन में जो फार्मर्स थे वो फॉरेस्ट के साथ क्या करते थे. मैं बताती हूँ वो फॉरेस्ट के साथ क्या करते थे. वो फॉरेस्ट के जो एरिया था उनको बर्न कर देते थे, जिससे कि जो वेजिटेशन है और जो एशेज़ हैं वो मिक्स हो जाए सॉइल के साथ, जिससे वो फर्टाइल बन जाए, और क्रॉप्स जो थी ना वो 2 to 3 ईयर्स वहाँ पे ग्रो हो जाती थी. और जैसे ही उन्होंने एक बार जला दिया, फर्टिलिटी हो गई सॉइल की, क्रॉप्स भी ग्रो कर गई 2-3 साल बाद. उसके बाद वो लैंड छोड़ देते थे, आगे बढ़ जाते थे, अगले फॉरेस्ट में चले जाते थे. When the fertility of the soil is exhausted, then they shift to another plot of land and do the same process. हर जगह उनका फॉरेस्ट्स में एक ही सेम प्रोसेस था कि फॉरेस्ट को पहले जलाना, फिर उसके बाद एशेस जो बनेंगे उसको सॉइल के साथ मिक्स करना, फिर फर्टाइल होने के बाद उसमें क्रॉप्स ग्रो करना, फिर 2-3 साल तक वो वहीं रहते थे, फिर उसके बाद अगले लैंड पे जाकर सेम प्रोसेस करते थे. अब उसके बाद है कि फॉरेस्ट के भी कुछ लॉज थे. ऐसे जैसे हमें पता है कि हिस्ट्री में हमने ज़्यादातर ब्रिटिश के बारे में पढ़ा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा है, वैसे ही यहाँ पर भी हम सोचेंगे ट्राइबल पीपल में भी अब ब्रिटिश आ गए. हाँ, आ गए, और उन्होंने लॉ भी बना दिए. लेकिन लॉ जो थे ना, जो यहाँ पर अब मेन कैरेक्टर जो आने वाला है ना, वो मतलब गॉड ग्रेस था. उसके पास इतनी मिरेकुलर पावर थी ना कि मतलब वो ना किसी भी डिसीज़ को क्योर कर सकता था और मल्टीप्लाई कर सकता था ग्रेन्स को. तो अब शायद आपको मेरा पॉइंट थोड़ा हीरो की तरफ लेके जा रहा होगा, इस मेन चैप्टर का हीरो है ना. तो फिर यहाँ पर जो लॉज ब्रिटिश ने बनाए थे फॉरेस्ट के लिए, वहाँ पर भी वो हीरो के थोड़े थोड़े टैक्स थे. जो हीरो था ना, मतलब वो खुद सोचता था कि भगवान ने मेरे को इस ट्राइबल पीपल की ज़िंदगी को ना मीन्स अच्छा करने के लिए, गोल्डन पीरियड, पास्ट वाले अच्छे गोल्डन पीरियड को वापस लाने के लिए भेजा है. तो अब इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं. Forest Department was set up in 1864. This question is mean that when was Forest Department set up? In 1864 it was set up. And why it was made? It was made for the forest as the state property. So some forests were classified as reserved forests because the British wanted timber. British को क्या चाहिए होता है? हर चैप्टर में हमने पढ़ा है कि ब्रिटिश को जो ज़्यादा चीज़ बिकती है उसको वही चाहिए होती है. जैसे हमने पिछले सेकंड फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी में हमने अपनी बुक में ये पढ़ा था कि जो ब्रिटिश थे उनको वहाँ के सिल्क, स्पाइसेस, ये सब कॉटन सब कुछ चाहिए था. वो जो मतलब हैंड क्राफ्ट से हमारे इंडियंस बनाते थे उनको वो सब चाहिए था, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश को. तो ब्रिटिश को हर चीज़ चाहिए थी. ये हमें ब्रिटिश की पास्ट की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता लगी कि जो भी ब्रिटिश चाहिए था ना, उनको सब कुछ चाहिए था जो फेमस था. अब उन्हें कोकून्स भी चाहिए थे, कोकून्स जो कि 3-4 रुपीज़ में जो वो थे ट्राइबल जो बनाते थे, मतलब रियर करते थे कोकून्स को, वो 3-4 रुपीज़ में उनको सेल करते थे. लेकिन आगे जाके ब्रिटिश उसको 5 मतलब इंटू 5 उस जो रेट वो उनको देते थे उनमें 5 प्लस करके आगे बेचते थे. तो देखो भाई कितना मुनाफा करते थे ब्रिटिश और कितने बैड थे वो. Some forests were classified as reserve forests. ब्रिटिशर्स ने कुछ फॉरेस्ट, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने अपने फ्रेंड के लिए क्लास में सीट रिजर्व करके रखी है ताकि हमारे साथ कोई आके बैठ ना चाहे, तो सीट रिजर्व कर रखी थी. ऐसे ही ब्रिटिश ने फॉरेस्ट रिजर्व कर रखा था क्योंकि उसको क्या चाहिए था, उसको तो टिम्बर चाहिए था. और इस फॉरेस्ट में जो पीपल थे वो अलाउड नहीं थे ताकि वो गैदर हो एक जगह पे, ना कि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस बनाए, ना ही प्रैक्टिस करे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ना ही हंट एनिमल्स करे. मतलब जो फॉरेस्ट्स
ब्रिटिश ने रिजर्व किए हुए थे, वहाँ पर ट्राइबल पीपल वर नॉट अलाउड। वहाँ पर ट्राइबल पीपल जा ही नहीं सकते थे, कोई भी, ना हंटिंग करने के लिए, ना गैदरिंग करने के लिए, ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी नहीं कर पाते थे। अब देखो कितना लॉस हो गया ट्राइबल पीपल का। अब जो ब्रिटिश रूल्स बनाए थे ट्राइबल ने, उस पर ना थोड़ा इम्पैक्ट पड़ गया वो मेन हीरो के कारण। तो ट्राइबल चीफ लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी ऑन देयर पीपल। अब ट्राइबल पीपल ने तो अपना इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी छोड़ ही दी थी पीपल के ऊपर, और वो फोर्स हो गए थे कि वो ब्रिटिश का बनाए हुए रूल्स फॉलो करें और कंट्रोल द ट्राइब्स ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। मीन्स उनको सारे रूल्स मानने पड़ेंगे ब्रिटिश के, जो ब्रिटिश ने बनाए हैं। और ब्रिटिश चाहते थे कि ट्राइब्स एक जगह पर सेटल हो जाए, जिससे कि ब्रिटिशर्स को इजी होगा ना। देखो, अगर हम जैसे मान लें कि हम अगर एक जगह पे बैठ जाए तो दूसरे इंसान के लिए फ़ायदा होगा ना, उसे स्पेस खाली मिलेगी, वो क्विकली कि मतलब कि वो बहुत ही जल्दी से उस चीज़ को फाइंड आउट कर लेगा जो उसे फाउंड आउट नहीं हो रही है। यहीं पर ऐसे ही ब्रिटिश ने ट्राइब को कहा कि सेटल डाउन हो जाओ, जिससे कि ब्रिटिश के लिए ईजियर होगा, ताकि वो कंट्रोल और ट्राइबल पीपल पर एडमायर कर सके। और पता है, ट्राइबल पीपल को फोर्स किया गया था कि उन पे जो न्यू फॉरेस्ट रूल्स बनाए हैं उनको फॉलो करें। काफ़ी चेंजेस हुए थे फॉरेस्ट लॉ में। ट्राइबल पीपल, जैसे हम पिछले स्लाइड में किया कि ट्राइबल पीपल को अलाउड नहीं था गैदर करना, फॉरेस्ट प्रोड्यूस और शिफ्टिंग कल्टीवेशन और हंट एनिमल्स करना, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए थे। अब यहाँ पर अगला टॉपिक शुरू हो गया है। पिछले में हमने पढ़ा ब्रिटिश के बारे में, ब्रिटिश ने ट्राइब्स के साथ क्या करा, ट्राइब क्या थे, ट्राइब कैसे थे। अब यहाँ पर आ गए हम डीकूस पे। डीकूस भी ना कुछ ब्रिटिशर्स से कम नहीं थे, ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स थे डीकूस। और वो ना डीकूस जो थे ना, ट्राइबल पीपल की ज़िंदगी बहुत ही, मतलब वो बोलते हैं ना कि बहुत ही गंदे तरीके से बना देते थे, मिजरेबल बना देते थे, क्योंकि उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहिए था जैसे ब्रिटिश करते थे, ऑयल सीड्स चाहिए थे और मेडिकल हर्ब्स चाहिए थे। मेन क्वेश्चन है कि डीकूस को ट्राइबल पीपल से क्या चाहिए था? ऑयल सीड्स, मेडिसिन, हर्ब्स, shrubs, flowers like kusum, plash, etc. They give less price. तो ऐसे ही डीकोस भी बहुत परेशान करते थे ब्रिटिशर्स की तरह। उनको क्या चाहिए था? ऑयल सीड्स चाहिए थे, मेडिकल हर्ब्स, शर्ब्स, फ्लावर्स लाइक कुसुम, फ्लैश एक्सेट्रा। और वो ना ट्राइबल पीपल को बहुत ही कम प्राइस भी देते थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, और उनको लोन भी देते थे, लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते थे, और विच टैप देम इनटू डेबिट। मतलब ट्राइबल पीपल डेबिट में चले गए थे भाई। ट्राइबल रिवॉल्ट्स। अब यहाँ पर आने वाली हैं बहुत सारी डेट्स और रीबिलियन, कि कब ये वाला रीबिलियन शुरू हुआ, कब ये वाला रीबिलियन ख़त्म हुआ, स्टार्ट हुआ। तो ऐसे ही है कि जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने काफ़ी रिवॉल्ट्स करे थे, उनमें मेन कॉजेज़ भी थे। लेकिन पहला जो है यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, द डिसरप्टिंग इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स, द restrictions on their practices, new high taxes were imposed and were exploited by the traders and the money lenders। अब ये वाला पॉइंट बहुत मेन है यहाँ पर। कोल्ड रिबिलियन स्टार्ट हुई थी 1831 को और ख़त्म हुई थी 1832 में, और सांथल रिबिलियन स्टार्ट हुई थी 1855 में, और बास्टर रिबिलियन हुई थी 1910। बास्टर रिबिलियन बहुत ही ज़्यादा मेन थी। दिस विल कम इन क्वेश्चन पेपर दैट व्हेन वाज बास्टर रिबिलियन स्टार्टेड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्ली रिबिलियन 1940 में हुई थी, जो कि सबसे मेजर रिबिलियन थी। अब आ गए हैं मुंडा। हीरो मिल गया है ना, हीरो है बिरसा मुंडा। अब हीरो हमने पता कर लिया। अब आप लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार था कि हीरो कौन है भाई, हीरो अभी तक बताया क्यों नहीं? अब बिरसा मुंडा है हीरो। वो इंडियन ट्राइब का ही फ्रीडम फाइटर था, जो कि मुंडा ट्राइब से बिलोंग करता था, और वो ट्राइबल पीपल को अर्ज करता था कि प्लीज़ अपना ग्लोरियस पास्ट रिकवर कर लो। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके पास miraculous powers थी। He wanted to reform his society and the people to work on land, settle down and cultivate their fields. He wanted his people to give up practices like drinking liquor, performing animal sacrifices and leading dishonest life। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मेन है
कि यहाँ पर मुंडा मतलब बिरसा मुंडा ने अपने फॉलोअर्स को ये कह दिया था कि ड्रिंकिंग लिक्वर बंद कर दो और एनिमल सेक्रीफाइसेस करना भी बंद कर दो और झूठी ज़िंदगी जीना प्लीज़ बंद कर दो. ही यूज ट्रेडिशनल सिम्बल्स एंड लैंग्वेज टू रोज पीपल अर्जिंग देम टू डिस्ट्रॉय रावणा, डीकूज एंड द यूरोपियन कंट्रीज. जैसे हमने पढ़ा था कि जो डीकूज थे वो बहुत ही मतलब मिजरेबल तरीके से ट्राइबल को करते थे. और जो मुंडा रिबिलियन था, बिरसा मुंडा ये चाहता था कि ताकि वो रावणा यानी कि डीकूस को ख़त्म कर सके, इसलिए वो ट्रेडिशनल सिंबल्स एंड लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे ताकि पीपल रोज़ हो, मतलब जैसे डिबेट होती है तो पीपल खड़े होते हैं ना वैसे. इसी के साथ हमारा ये वीडियो जो है वो एंड होता है. इसलिए जाने से पहले प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. और उसके बाद लास्ट स्टेप है आपका सब्सक्राइब. प्लीज़ ये ध्यान रखना कि सब्सक्राइब करते टाइम आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि और वहाँ पे ऑल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे ऑल का ऑप्शन भी दबा दें, जिससे कि जब मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए एंड यू कैन गेट स्टडीड. मतलब आपको मेरे साथ फोकस, पढ़ने में तो फोकस आ ही रहा होगा, इसलिए जाके आपको मेरे साथ फोकस आ जाए, मतलब पढ़ाई में मन लग जाए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ करना. ओके, बाय बाय नाउ.